Quadratic equation. Every polynomial equation has at least one root. An equation obtained by equating a quadratic polynomial to 0 is called a quadratic equation. Many real life situations can be represented by quadratic equation. In this chapter, we shall study various methods of finding the solution or the roots of quadratic equation. Also, we shall learn some application of quadratic equation in daily life situation. Quadratic equation means an equation obtained by equating a quadratic polynomial to 0 is called quadratic equation. Root of equation is a one form of quadratic equation. Okay, and equation of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real number and a not equal to 0 is called quadratic equation in variable x. In a mathematics, a quadratic equation is a polynomial equation of the second degree. The general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वेयर x रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, x वेरिएबल को रिप्रेजेंट और एन अननोन and a, b and c are constant with a not equal to 0. If a is equal to 0, the equation is a linear equation. अगर आपके यहाँ पर a की वैल्यू 0 है और ये bx प्लस सी के फॉर्म में है तो आपका वो linear इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. The constant a, b and c are called respectively the quadratic coefficient. a, b और c आपका कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट नंबर मिलेगा आपको कुछ ना कुछ. फॉर एग्जांपल 3, 5, 2. The linear coefficient and the constant term are free terms. Okay. आपको ये जो कांस्टेंट मिलेगा, आपको लीनियर कोएफिशिएंट मिल सकता है, कांस्टेंट टर्म मिल सकता है और फ्री टर्म भी हो सकता है. क्लियर. तो बेसिक हमारा डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. सो मैनी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x square minus 9x plus 3 root 5 is equal to 0. Each of above equation is a quadratic equation in x. Quadratic and roots. A real number alpha is called a root of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0. If a alpha square plus bx plus c is equal to 0, then we can also say that x is equal to alpha, a solution of the quadratic equation, or x is equal to alpha satisfies this quadratic equation. Alpha is the root of the equation. Quadratic, a polynomial of degree is equal to 2. Then for example, y is equal to ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation. Here
is n1 example. Okay, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x का जो पावर है वो 2 है. 2 दिस मेक्स इस क्वाड्रेटिक फॉर्म. अगर मैं पावर में 2 लिख दिया हूँ तो ये 2 ही इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है. दिस नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर. ओके, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है क्वाड, इसका मतलब होता है स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर. ओके, बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वायर लाइक एक्स स्क्वायर. इट इज ऑल्सो called an equation of degree 2 because of the 2 on the x. Okay, the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are called the zero of the quadratic polynomial. Since a quadratic polynomial can have two zeros, so any quadratic equation can have at most two roots. आपके पास एक quadratic equation है, उसका at most two root हो सकता है, होता है. Okay, roots. A real number alpha is called a root of the quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Okay, a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Then if alpha is a root of ax square plus bx plus c is equal to 0, then we say that alpha x is equal to a satisfies the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. X is equal to a satisfies the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. X is equal to alpha is a solution of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 के लिए. The root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are called zeros of the polynomial ax square plus bx plus c. More example of quadratic equation. 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0. In this one a is equal to 2, b is equal to 5 और c की वैल्यू 3 है. c की वैल्यू कितनी होगी 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3. x square minus 3x is equal to 0. This one is a little more tricky. आप यहां पर देखिए a की वैल्यू आपको शो नहीं कर रही है. In fact, where is a? In fact, a is equal to 1. कुछ नहीं दिया, मतलब a की वैल्यू 1. As we don't usually write 1x square. हम हमें ऐसा नहीं लिख सकते थे 1x स्क्वायर, कि 1 से x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करते तो हमको x स्क्वायर मिल जाता है. b की वैल्यू -3. वेयर इज c भी नहीं लिख रहे हैं, तो वेल c इज इक्वल टू 0, सो इज अ नॉट शोन. आपके पास a नहीं दिया है तो a की वैल्यू 1 ले लिया, c नहीं दिया है, c की वैल्यू 0 ले लिया. वेयर ओके. Next, 5x minus 3 is equal to 0. This one is not a quadratic equation because it is missing x square. आपके पास अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, बिकॉज इट इज मिसिंग एक्स स्क्वायर. इन अदर वर्ड a इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू अगर जहां 0 मिलती है तो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा. दैट मीन्स इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक.
hidden quadratic equation. So far we have seen the standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. But sometime a quadratic equation doesn't look like that. Here are some examples of different types of quadratic equation. Okay. X square is equal to 3x minus 1. ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन देता है तो मूव ऑल टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्रांसपोजिशन कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1. ओके, यानी कि आपको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मिल गया. 2 अंडर ब्रैकेट w स्क्वायर माइनस 2w इज इक्वल टू 5. एक्सपेंड एंड मूव 5 टू लेफ्ट. ओके, ब्रैकेट को अपन ब्रेक करते हैं पहले. 2w स्क्वायर माइनस 2 जब 4w इज इक्वल टू 5, 5 को अंदर ले गया तो -5. 2w स्क्वायर माइनस 4w माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -5. ओके, जेड अंडर ब्रैकेट जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 3. एक्सपेंड एंड मूव 3 टू लेफ्ट. जेड स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 3. ओके, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -1 हो गई, सी की वैल्यू -3 हो गई. ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म. 5 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो आपके किस फॉर्म में आ गया, 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1. अगर आपको देखिए क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू पूरी मिल रही है ना, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में आए क्वेश्चन, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Solving the quadratic equation. To solve quadratic equation means to find its root. We shall learn in the next 4 section. The quadratic equation can be solved by any of the following 3 methods. Okay, then there are 3 ways to find the solution. First, by factorization method, by using quadratic formula method, and third, by using completing the square method. We can factor the quadratic. Okay, find what to multiply to make the quadratic equation. Second, we completing the square. And third, we can use the special quadratic formula. तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, इस फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं. ओके, श्रीधराचार्य रूल. Thus, ax square plus bx plus c is equal to 0 has the 2 roots alpha and beta given by. तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अल्फा के साथ प्लस साइन ले लिया, बीटा के साथ -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, just put the values of a, b and c into quadratic formula
and do the calculation. Sometimes an equation which appear to be quadratic may not be actually quadratic. On the other hand, an equation which appears to be cubic may turn out to be quadratic. So we must simplify the given equation before deciding whether it is quadratic or not quadratic. Example, solve 5x square plus 6x plus 1 is equal to 0. a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई. कोफिशिएंट आर a is equal to 5, b is equal to 6, c is equal to 1. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया. तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 20, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 5 4 जा 20, 2 5 जा 10. तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 10. 16 का रूट कितना आ गया 4 अब है ना. तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 10. तो माइनस 6 प्लस माइनस 4. अब यहाँ पर हम एक बार पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन लेके x की दो वैल्यू लेते हैं. माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 10. ओके मतलब 1 अपॉन 5 तो माइनस 0.2 आ गया. ओके एंड माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1 आ जाएगा. क्लियर है. ये आपका है मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्क्रिमिनेट. द एक्सप्रेशंस b स्क्वायर माइनस 4ac इन द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेट कैपिटल D. ओके x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेट होता है. इट इज कॉल्ड discriminate because it is can discriminate between the possible type of answer. It can be denoted by capital D. When b square minus 4ac d is positive, you get two real solution. When it is a 0, you get just one real solution. Okay. Both answer are the same. When it is negative, you get two complex solution. Value of d greater than 0, real and unequal. इसके रूट के लिए d माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a ले लेते हैं. d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल. a रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a. d लेस देन 0, नो रियल रूट्स. कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता इसका. सब कुछ एग्जाम्पल से इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट है केस 1. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0. द रूट आर रियल इक्वल एंड रैशनल. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. वी हैव फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a. तो माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a. द रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड रैशनल. सेकेंड केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेट एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल. एग्जाम्पल लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16. ओके then d greater than 0 and also a perfect square. Then b square minus 4ac is equal to 16 in a quadratic formula. तो आ गया आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट 16 अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 2a. तो माइनस बी प्लस 4 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 4 अपॉन 2a. द रूट आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल. थर्ड केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0,
but not a perfect square. The roots are real, distinct and rational. For example, b square minus 4ac is equal to 21. D greater than 0 but not a perfect square. तो b square minus 4ac is equal to 21, quadratic formula. माइनस बी प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2a. 21 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल. ओके. फोर्थ केस, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, द रूट्स आर इमेजिनरी. लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -6 लेस देन 0, यानी कि d लेस देन 0. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस 6 माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस 6 क्या है, रूट माइनस 6 इमेजिनरी, तो हैंस द रूट आर इमेजिनरी. केस नंबर 5, if b square minus 4ac greater than equal to 0, the roots are equal. Okay, to understand this we have to combine case 1, case 2 and case 3. All that we find the common is real. If b square minus 4ac greater than equal to 0, the roots are equal. d is equal to 0 मिलता है तो वो इक्वल रूट्स कहलाता है. फाइनलाइज ये है कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल. बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल. बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल. b square minus 4ac less than 0, the roots are imaginary. b square minus 4ac greater than equal to 0, the roots are equal. ये आपकी फाइनल समरी बनती है इसकी नेचर ऑफ रूट के लिए. ओके, सम एग्जांपल. एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3x square plus 8x plus 4 is equal to 0. Solution: the given quadratic equation is in the general form ax square plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 4. तो हमारे पास हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट में b स्क्वायर माइनस 4ac, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64. 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 64 माइनस 48 कितना आ गया, 16. तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. ओके, तो 16 ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2x square minus 3x minus 1 is equal to 0. The given quadratic equation is in the general form ax square plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1 हो गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, तो कितना हो गया, 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 प्लस 8 17. 17 greater than 0 but not a perfect square, so root are real, unequal and irrational. Next, example number 3. Examine the nature of root of the following quadratic equation. X square minus 16 plus 64, ax square plus bx plus c is equal to 0. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -16, c की वैल्यू 64. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64, तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया. 4 4 जो 16, 64 इंटू 4 किया 256 आ गया. 256 माइनस 256 0, तो d इज इक्वल टू 0. द रूट्स आर इक्वल, रियल एंड रैशनल. क्लियर है. नेक्स्ट,
एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू होगी 5, बी की वैल्यू होगी -4 और सी की वैल्यू 2। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास यहाँ पर a, b और c की वैल्यू मिल जाती है। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट में फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 2, तो आ गया 16 माइनस 40 तो -24। तो d लेस देन 0, द रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, -24 लेस देन 0 आ जाता है। फैक्टराइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये नेक्स्ट मेथड है इसमें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। टू फैक्टर or factorize a quadratic is to find what to multiply to get the quadratic. It is called factoring because you find the factors. Okay. Example, the factors of x square plus 3x minus 4 are x plus 4 and x minus 1. Why? Well, let us multiply them to see. ओके, x प्लस 4 और x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के फॉर्म में आ जाता है। ओके, अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के फॉर्म में, अगर इसका फैक्टर निकालते हैं तो x प्लस 4 और x माइनस 1 आ जाता है। ओके, देन मल्टीप्लाइंग x प्लस 4 और x माइनस 4 टुगेदर इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग। इन द फैक्ट, एक्सपेंडिंग एंड फैक्टराइंग आर ऑपोजिट्स। Clear? Examples of factor. To solve factoring, set the equation equal to 0. The factor will be linear expressions. Set each linear factor equal to 0. Solve both linear equation. Okay? एक एग्जाम्पल है, x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. सेट इक्वेशन टू 0. फर्स्ट केस, x को कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, फैक्टर निकल गया। x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इक्वल टू प्लस 3 को ट्रांसफर किया -3। सेट द लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 मेथड एक्सप्लेन किया हूँ, फैक्टराइजेशन का और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।